Hare Krishna, I am Dr. Bikram Prasad, Associate Professor in SAGE Group. Today we will study cement and its laboratory test. ये टॉपिक सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी व्यक्ति साइट में जॉब कर रहे हैं या प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये इससे क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो इसको पूरे लास्ट तक देखिए तो आपको सीमेंट्स और उसके डिफरेंट टेस्ट के बारे में आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। Cement, it is a fine soft powdery type substance. It is made from a mixture of elements that are found in natural materials such as limestone, clay, sand or shale. When cement is mixed with water, it can bind sand and aggregates into a hard solid mass called concrete. तो सीमेंट जो है आजकल सभी जगह यूज़ हो रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा सीमेंट के यूज़ करते हैं जिससे कि हम कंक्रीट बनाते हैं और कंक्रीट से सारे स्ट्रक्चर्स को हम बनाते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, तो जो कौन कौन से केमिकल कंपोजिशंस होते हैं सीमेंट में, तो बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम 60 से 67%, SiO2 सिलिका 70 to 25%, अलुमिना Al2O3 5 to 8%, Fe2O3 0.5 to 6%, मैग्नीशिया 0.1 to 4%, अल्कलीज 0.2 to 1% एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 to 3%। तो सीमेंट के ये बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट हमारा जो वेरिएशंस है ये कंपोनेंट का कंस्टिट्यूएंट्स वो वेरी करता है। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है सीमेंट का उसी अकॉर्डिंग हम फिर इसके जो है कंपोनेंट के परसेंटेज को वेरी करते हैं। फंक्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, फर्स्ट इज लाइम, मेजर ingredient of cement. Excess quantity of lime makes the cement unsound. If it is less, it decreases the strength and allows the cement to set quickly. Silica, an important ingredient which gives strength to cement. If it is in excess, silica allows the cement to set slowly. Alumina, this imparts quick setting time to the cement. If it is in excess quantity, it weakens the cement. It also lowers the temperature of clinkers. Iron oxide, it helps the fusion of the raw materials during burning stage. It gives color, strength and hardness to cement. Magnesium oxide, if present in small quantities, magnesium oxide imparts hardness and color to cement. If becomes excess quantity, weakens the cement. Sulfur trioxide, very small quantity is required in the manufacturing of cement. If it is in excess, SO3 makes the cement unsound. Alkalis, a small quantity are required. Alkalis and other impurities present in raw materials are carried by the flue gases during heating. If it is in excess quantity, efflorescence is caused. Hydration of cement. During the manufacturing of cement, various constituents combine in burning and form certain compounds. These compounds formed during burning react with water, help in setting and hardening of cement. These compounds are called Vogt compounds. They are tricalcium silicate C3S, dicalcium silicate C2S, tricalcium aluminate C3A and tetracalcium aluminoferrate C4AF. तो जब सीमेंट जो है वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। These are C3S, C2S, C3A and C4AF. तो सभी कंपाउंड्स का अलग अलग फंक्शंस होता है। When water is added to cement, a chemical reaction starts between active components of cement and water, which is exothermic in nature and liberate a significant amount of heat. This is known as hydration, and the liberated heat is called heat of hydration. So, tricalcium silicate hydrates rapidly and forms earlier strength and earlier heat of hydration, whereas dicalcium silicate hydrates slowly and is responsible for strength increase in concrete at later stage. The heat of hydration is liberated slowly. तो जो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट होता है वो हमारा अर्लियर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन डाइकैल्शियम क्या है, लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करेंगे तो जैसे 365 डेज तक जो है हमारा स्ट्रेंथ कंक्रीट में बढ़ती ही रहता है। तो लॉन्ग टर्म की जब हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वहाँ पे डाइकैल्शियम सिलिकेट का एक्शन रहता है, और ट्राइकैल्शियम जो है कि हमें
अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट्स रैपिडली एंड लिबरेट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, है ना। और ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट क्या है, वो हमें सेटिंग टाइम में काम आता है, ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट्स गेट 2020 में इसी पे क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो बहुत तरह के सीमेंट होते हैं। जैसे पहला जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी। ओपीसी सीमेंट जो है उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये हार्ड होते हैं तो जो ये कंक्रीट सरफेस होता है उसका कलर जो है वो पोर्टलैंड स्टोन जैसा दिखता है, ठीक ना। ये 3 ग्रेड में पाए जाते हैं, जैसे C33, C43 एंड C53। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ये भी पोर्टलैंड सीमेंट है, बट इसमें क्या है, पोजोलाना मटेरियल फ्लाई एश को हम ऐड करते हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में क्या होता है कि एल्यूमिना का जो हम कंटेंट डालते हैं वो कम डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सल्फेट फॉर्मेशंस कम होते हैं। अगर सल्फेट फॉर्मेशन होंगे, सॉल्ट बनेंगे, तो हमारा जो कंक्रीट बनेगा वो वीक हो जाएगा। क्विक सेटिंग सीमेंट एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या होता है कि जो आपका कंक्रीट है वो क्विकली सेट हो जाता है, वेयर रैपिड हार्डनिंग में सीमेंट में क्या होता है कि वो जो स्ट्रेंथ है वो हमें जल्दी मिलता है। लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट में क्या है कि हमें लो हीट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसमें हाई एल्यूमिना कंटेंट हम डालते हैं तो बहुत जल्दी सेट हो जाता है, बट जनरली हम इसे अब यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे जो है आपका स्ट्रेंथ बहुत कम मिलता है। वाइट सीमेंट, जब हम आयरन ऑक्साइड मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो कम डालते हैं तो वो हमारा वाइट सीमेंट होता है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, दिस इज योर वाइट सीमेंट, ठीक है ना। और डिफरेंट डिफरेंट कलर से हमें अलग अलग कलर के सीमेंट भी हम बनाते हैं, ठीक है ना। लेबोरेटरी टेस्ट ऑन सीमेंट, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल्स में। अगर हम कहीं साइट में जॉब करते हैं तो भी हमें रेगुलरली सीमेंट के टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं कि जो हमें सीमेंट मिला है उसका क्वालिटी कैसा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम 6 तरह के टेस्ट देखेंगे। फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट में बेसिकली हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हम मिक्सर करेंगे वाटर सीमेंट रेशियो हम कितना लेते हैं, ना। कंक्रीट जब हम फॉर्म करेंगे तो जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ जो हमसे मिलता है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो से मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम कितना होता है, ठीक है ना। अगर ये से सीमेंट हमने लिया है तो वो कितने टाइम में सेट हो जा रहे हैं। फिर साउंडनेस ऑफ सीमेंट, उसमें लाइम की मात्रा कितना है, ज़्यादा तो नहीं है, वो चेक करने के लिए हम साउंडनेस ऑफ सीमेंट टेस्ट करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सामने आपको बताया C33, C43 एंड 53। तो ये जो ग्रेड ऑफ सीमेंट है वो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से फाइंड करते हैं। फाइनेस ऑफ सीमेंट, फाइनेस मीन्स उसके जो ग्रेन साइज है वो ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है ना। अगर साइज ज़्यादा होंगे तो वो प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं होगा और हमें स्ट्रेंथ नहीं मिलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। इसके प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम 300 ग्राम सीमेंट लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्टार्टिंग में 25% वाटर बाय वेट लेंगे, ठीक है ना। 300 ग्राम का 25% वेट जो है हम वाटर लेंगे, ठीक है। तो 300 ग्राम लिए तो ये कितना हो जाएगा, 25%, 75 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। कीप द मोल्ड ऑन ए नॉन ऑब्जर्वेंट प्लेट। फिर जो एपरेटस हम यूज़ करते हैं उसका नाम होता है आपका विकेट एपरेटस, ठीक है। तो विकेट एपरेटस का मोल्ड होता है, उसको हम सीमेंट पेस्ट से फिल करेंगे और उसको प्रॉपरली टैम्प करके उसको फिल कर देंगे, ठीक है ना। टू मेक द सीमेंट स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन द मोल्ड, मोल्ड में प्रॉपर यूनिफॉर्मली फिल हो जाना चाहिए। उसके बाद जो प्लंगर साइज होते हैं और 10 mm इंटू 50 mm लॉन्ग जो प्लंगर होता है उसको फिर हम एपरेटस में होल्ड कर देते हैं। फिर स्लोली हम क्या करते हैं, उसे प्लंगर को रिलीज करते हैं, ठीक है ना। फिर जैसे वो मोल्ड के पास आ जाता है, विकेट मोल्ड के पास, तो फिर उसको हम क्विकली लीव करते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू दी वेट
of header and holder, the plunger penetrates into the cement paste. तो जैसे हम ये इस फिगर में देख सकते हैं, ये दोनों व्यू हैं आपके विकेट एपरेटर्स का, और ये आपका मोल्ड है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये जो हमारा प्लंगर साइज है, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम ये प्लंगर यूज़ करते हैं, इसका की डायमीटर 10 mm है और लेंथ क्या है 50 mm है, ठीक है ना। तो इसे हम यूज़ करते हैं और इसको इस एपरेटस में होल्ड करते हैं। देखिए ये फिक्सिंग करने के लिए दिया है, और यहाँ पे जो है आपका स्केल है, इसमें आपका पता चलता है कि कितना mm वो नीचे गया है, ठीक है ना। वो मोल्ड के अंदर ये जो आप जब प्लंगर लगाएंगे, पिन लगाएंगे, तो ये कितना इसके अंदर इंसर्ट हुआ है वो हमें पता चलता है, जितना ये नीचे जाएगा। तो ये हमारा स्केल है, ठीक है ना। Note the plunger penetration reading on the scale of apparatus. The recorded penetration value is reckoned from the bottom of mold. Remove the plunger and cement paste from the mold. Take sample of cement and repeat the entire process with 27% of water and note down the plunger penetration. Repeat the above process with varying percentage of water and note the penetration of plunger till the penetration value is 5 to 7 mm. Measure from the bottom of the mold to the tip of the plunger. तो हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि वो कितना नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो डेप्थ है वो नीचे से 5 to 7 सेंटीमीटर होना, सॉरी 5 to 7 mm होना चाहिए। तो जब तक वो नहीं वैल्यू होता है तब तक हम जो है वाटर जो का जो रेशियो है वो बढ़ाते जाएंगे, और फिर हम देखेंगे जिस समय वो 5 से 7 mm तक रहता है तो उसी को हम दैट परसेंटेज विल बी द consistency of cement, है ना। Generally the standard consistency of Portland cement is 30 to 35% by weight of cement. Then initial and final setting time of cement. When water is added to cement, the paste starts stiffening and gaining strength, simultaneously losing its plasticity. Two stiffening states identified are initial and final setting times respectively. Initial setting time is the time interval between the addition of water to cement and the stage when needle ceases to penetrate completely. तो बेसिकली जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है उसमें जो सीमेंट जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, जस्ट स्टार्ट होते हैं सेटिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो उसको हम डिटेल से देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं। जनरली जो है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट्स होते हैं ऑर्डिनरी सीमेंट के लिए। तो सबसे पहले प्रिपेयर ए नीट सीमेंट पेस्ट बाय मिक्सिंग द सीमेंट विथ 0.85 टाइम्स द वाटर रिक्वायर्ड टू गिव ए पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी में हमने जो वैल्यूज निकालते परसेंटेज ऑफ वाटर, उसका हम 0.85 टाइम्स वाटर लेंगे, ठीक है ना। फिर स्टार्ट स्टॉप वॉच एट द इंस्टेंट व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट। थॉरोली मिक्स सीमेंट एंड वाटर using gauging trowels till required uniformity is attained in mixing. Fill the mold completely and smoothen the surface of the paste by making it level with the top of the mold. फिर जब हमने वो मोल्ड को बना लिया तो फिर हम उसको मोल्ड को क्या करेंगे, विकेट एपरेटस में रखेंगे, और उसके बाद जो हमारा नीडल सी है, ठीक है ना, जैसा कि हमने आपको बताया था, नीडल सी जो है जिसका डायमेंशन है आपका 1 mm स्क्वायर इसका डायमीटर है और 50 mm ऑब्वियसली लेंथ है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें फिर से हम उसको जब फिल कर दिए तो फिर हम उसको जनरली जो एपरेटस है, जो नीडल है हमारा, उसको लोअर डाउन करेंगे, फिर उसको हम रिलीज करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो है 5 to 7 mm, फिर से इसमें भी वही वैल्यू है, 5 to 7 mm तक वो जाना चाहिए, पूरा अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर 5 to 7 mm तक जिस पॉइंट पे जाएगा तो दैट टाइम विल बी कॉल्ड एज सेटिंग, इनिशियल सेटिंग टाइम। नेक्स्ट इज फाइनल सेटिंग टाइम। रिप्लेस द नीडल सी विथ नीडल एफ ऑन द विकेट एपरेटस अटैचमेंट, ठीक है ना। तो इसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम जब हमने चेक कर लिया तो फिर हम फाइनल सेटिंग टाइम देखते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब यही है कि वो हार्डेंड स्टेट में आ गया है। तो ये देखिए आपका एफ वाला नीडल ये है, ठीक है ना। इसको हम चेंज कर देते हैं नीडल को यहाँ पर,
और फिर ये जो नीडल है जिसका डायमेंशंस आप देख सकते हैं, इस डायमेंशंस के नीडल को हम फिर उसमें एपरेटस में लगा देते हैं। The period elapsing between the time when water is added to the cement and the time at which needle makes any impression on the surface of the test block while the attachment fails to do so shall be the final setting time. The final setting time of ordinary pottery cement is generally 600 minutes, that is 10 hours. ठीक है, तो हमें याद करना जरूरी है। जल्दी पूछते हैं एग्जाम्स में कि कितना इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है और फाइनल सेटिंग टाइम कितना है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम जनरली 30 मिनट्स होते हैं और फाइनल सेटिंग टाइम आपके 10 आवर्स होते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज साउंडनेस टेस्ट। ठीक है ना, साउंडनेस टेस्ट में जो एपरेटस हम यूज़ करते हैं उसको हम ली चैटेलियर एपरेटस कहते हैं। ठीक है ना, जो आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका साइड व्यू है। ठीक है ना, ये साइड व्यू है। तो इस तरह का ये एपरेटस रहता है। देखिए इसका डायमीटर 30 mm का है और ये जो लेंथ है आपका ये 165 mm है, आप देख सकते हैं। और ये जो थिकनेस है दैट इज योर 0.5 mm। सीमेंट इज गॉस्ड विद 0.78 टाइम्स द वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। इसमें भी हमें सीमेंट पेस्ट बनाना है जिसमें हम 0.78 टाइम्स जो हमने वाटर सीमेंट रेशियो हमने फाइंड किया था कंसिस्टेंसी टेस्ट में, उसका 0.78 टाइम्स लेना है। ठीक है ना, इसके बाद उसको वो जो हमारा लीड चैटेलियर एपरेटस है उसके मोल्ड को हम फिल कर देंगे सीमेंट पेस्ट से। सीमेंट पेस्ट से फिल करने के बाद उसको हम फिर ग्लास प्लेट से कवर कर देंगे। ठीक है, ये ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट से हमने इसको कवर कर दिया। देन द होल असेंबली इज इमर्स्ड इन वाटर एट ए टेम्परेचर 27 डिग्री to 32 degrees Celsius and kept for 24 hours. The distance between the indicator points is measured. The mold is submerged again in water and the water is heated to boiling point in about 25 to 30 minutes. The boiling is continued for 3 hours. ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इस जब को हमने इसको ग्लास से ढक दिया, ढकने के बाद इसको हम क्या करेंगे 24 आवर्स इसको क्यूरिंग पर्पस के लिए रख देंगे। ठीक है ना, वाटर में रख देंगे। इसके बाद जब उसको हम रीडिंग देंगे कि इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है। ठीक है ना, ये दो जो आपका ये बना हुआ है इससे इसका गैप देखेंगे कितना आ रहा है। उसके बाद फिर इसको हम क्या करेंगे बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद फिर देखेंगे इसमें डिस्टेंस कितना गैप बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ये गैप कुछ बढ़ेगा डिपेंडिंग अपॉन दी लाइन कितना उसमें मिला हुआ है। तो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेजरमेंट्स रिप्रेजेंट द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, दोनों रीडिंग लेने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा दैट विल बी कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट। दिस मस्ट नॉट एक्सीड 10 mm फॉर ऑर्डिनरी रैपिड हार्डनिंग एंड लो हीट पॉलिश में। 10 mm से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। पहले हम क्या किए, पहले हमने उसको वाटर में रखा 24 आवर्स के लिए। ठीक है ना, उसके बाद हमने रीडिंग लिया, उसके बाद फिर हमने इसको बॉइलिंग किया। बॉइलिंग करने के बाद रीडिंग लिया तो देखेंगे कि वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 mm से ज़्यादा है तो वो सूटेबल नहीं है और उसे हम अनसाउंड कहेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मोटार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा क्यूब है, बेसिकली 70.6 या 76 mm का हम क्यूब लेते हैं। ठीक है ना, और ये हमारा कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट और सैंड को मिलाते हैं इन द रेशियो 1:3। मीन्स x ग्राम अगर हम सीमेंट लेंगे तो कितना 3x ग्राम हमें सैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, द वाटर इज एडेड टू द मोटर। जनरली हम 0.4 टाइम्स लेंगे, दैट इज ठीक है ना 0.4 टाइम्स 40% लेंगे हम वाटर सीमेंट रेशियो। उसके बाद ये सैंड सीमेंट और सैंड को जब हमने मिक्स कर दिया वाटर के साथ तो वो आपका मोटर प्रिपेयर्ड हो गया। अब मोटर को क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड मोटर को इसमें फिल करेंगे। जो हमारा मोल्ड है, ये मोल्ड ऐसा रहता है कि इसको हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जो है आपका नट के थ्रू बना हुआ है तो इसको हम आसानी से बाद में ओपन कर सकते हैं। यहाँ फॉर 70.6 mm and 76 mm cubes the cement required is 185 ग्राम एंड 235 ग्राम रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, दोनों मोल्ड को हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए 70.6 mm वाला जो क्यूब है उसके लिए हमें कितना लगेगा 185 ग्राम
हम सीमेंट लगेंगे और 76 वाला जो है उसमें 235 ग्राम लगेगा। फिर उसे हम वाइब्रेशन मशीन में रख देते हैं ताकि वो 2 मिनट तक वो वाइब्रेट हो। उससे क्या होगा, वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। द मोल्ड्स आर प्लेस्ड इन डैम कैबिन फॉर 24 आवर्स। फिर उसको हम डैम कैबिन में रखते हैं। द स्पेसिफिकेशन आर रिमूव फ्रॉम द मोल्ड्स एंड दे आर सबमर्ज्ड इन क्लीन वाटर फॉर क्यूरिंग। फिर उसके बाद क्यूरिंग के लिए हम रख देते हैं। द क्यूब्स आर देन टेस्टेड इन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन at the end of 3 days and 7 days. The testing of cubes is carried out on their 3 sides without packing. The 3 cubes are tested each time to find out the compressive strength at the end of 3 days and 7 days. The average value is then worked out during the test. The load is applied uniformly at the rate of 350 kg per centimeter square or 35 Newton per mm square. फिर उसके बाद हम जो है इस मशीन में हम पुट करते हैं, ठीक है ना, कि कितना जो क्यूब हमने प्रिपेयर किया है उसको हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रहते हैं, उसमें लोड देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कितना उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रहा है। जनरली अगर हम बात करें 3 डेज के लिए तो वो 11.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और अगर 7 डेज की बात करें तो 17.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ग्रेड ऑफ सीमेंट जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि 28 डेज स्ट्रेंथ तक हम लेते हैं, तो C33 ग्रेड जो होता है वो अगर 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर वैल्यू आना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सिमिलरली C43 क्या है, जिसका स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए, एंड C53 क्या है, जिसका स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए वैल्यूज। नेक्स्ट टेस्ट इज फाइनेंस टेस्ट। फाइनेंस टेस्ट में हम सीव लेते हैं 90 माइक्रोमीटर का, ठीक है ना, 90 माइक्रोमीटर 19×10⁻⁶। सीव का जो साइज है, जो ये सीव का जो साइज है वो हम इतने साइज वाला सीव लेते हैं, ठीक है ना। ए बैलेंस लेते हैं ऑफ 0.0 ग्राम सेंसिटिविटी। प्योर ब्रिसल लेते हैं या ब्रश लेते हैं, एंड सीव शेकिंग मशीन लेते हैं, ठीक है ना, शेक करने के लिए। प्रोसीजर 1 kg ऑफ सीमेंट हम लेंगे, ठीक है ना, और उसका वेट करेंगे, ठीक है ना, दैट इज योर W1। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको प्रॉपरली रब करेंगे ताकि इसमें कुछ भी जो है आपका बड़ा पार्टिकल नहीं रहे, ठीक है ना। और उसके बाद उस 1 kg को हम इस सीव के अंदर रख देंगे। फिर उसके बाद उसको हम 15 मिनट्स तक सेक करेंगे। अगर आपके पास सेकिंग मशीन है तो 15 मिनट्स सेकिंग मशीन में रखेंगे, अगर नहीं है तो आप खुद से 15 मिनट तक उसको सेक करेंगे प्रॉपरली। फिर उसके बाद ब्रश द सीव बेस जेंटली विद द ब्रिसल ब्रश सो दैट नथिंग इज लेफ्ट ऑन द सीव सरफेस। जस्ट वेट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सीमेंट ऑन द सीव, और उसका हम वेट करेंगे तो देखेंगे कि कितना वेट आ रहा है, तो उसका वैल्यू हम लगते हैं W2। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ सीमेंट रिटेन ऑन द 90 माइक्रोमीटर सीव, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे कि कितना उसमें रिटेन हो रहा है। तो W2 जो रिटेन हो गया अपॉन जो हमने इनिशियल वेट लिया था, ठीक है ना, तो उसको फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ सीमेंट रिटेन मिल जाएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द अमाउंट ऑफ सीमेंट रिटेन ऑन द 90 माइक्रोमीटर सीव शैल नेवर एक्सीड 10%, ठीक है। तो 10% से ज़्यादा वो वैल्यूज नहीं आने चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ, द मोटर ऑफ सीमेंट एंड सैंड इज प्रिपेयर्ड, द प्रोपोर्शन इज 1:3। सेम प्रोपोर्शन लेंगे 1:3 से, और द वाटर इज एडेड टू द मोटर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 5% बाय वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। जितना हम सीमेंट सैंड लेंगे उसका 5% वेट हमें लेना है वाटर का। फिर उसके लिए ये देखिए ये ब्रिकेट मोल्ड है। ब्रिकेट मोल्ड में फिर हम उस पेस्ट को मोटर को प्लेस कर देते हैं। द मोटर इज प्लेस्ड इन ब्रिकेट मोल्ड्स, द मोल्ड इज फिल्ड विद मोटर एंड देन ए स्मॉल हीप ऑफ मोटर इज फॉर्म्ड एट इट्स टॉप। It is beaten down by a standard spatula till water appears on the surface. Same procedure is repeated for the other face of briquette. Such 12 standard briquettes are prepared. The quantity of cement may be 600 ml for 12 briquettes. ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका डायमेंशंस दिए हुए हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिकेट मोल्ड। फिर दिस इज योर एलिवेशन। अगर हम साइड से देखेंगे, अगर टॉप व्यू देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, मोटर से पूरा फिल करते हैं, और थोड़ा सा आपका हीप होना चाहिए ऊपर में। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, तो स्पेचुला से उसको थोड़ा सा बीट करेंगे। बीट करने के बाद उसमें देखेंगे कि हल्का सा वाटर आना चाहिए। फिर जो आपका ब्रिकेट मोल्ड है उसको क्या करेंगे, डैम कैबिन में 24
घंटे के लिए रखेंगे। द ब्रिकेट्स आर केयरफुली रिमूव फ्रॉम द मोल्ड्स एंड दे आर सबमर्ज्ड इन क्लीन वाटर फॉर कूलिंग। द ब्रिकेट्स आर टेस्टेड इन टेस्टिंग मशीन एट द एंड ऑफ 3 days एंड 7 days। तो बेसिकली 6 ब्रिकेट लेंगे क्योंकि फिर हमें उसके का एवरेज लेना पड़ता है। 3 का एवरेज लेंगे। ड्यूरिंग द टेस्ट द लोड इज अप्लाइड is 3.5 Newton per mm square. It may be noted that cross sectional area of briquette at its last section is 6.545 centimeter square। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस निकाल लेंगे जिस लोड पे वो फेल हुआ अपॉन 6.45। ठीक है ना, क्योंकि उसका एरिया इतना है 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? तो 3 days में 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए और 7 days में कितना होना चाहिए? 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है ना। अगर इतना वैल्यू नहीं होता है तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है। तो बेसिकली हमने आज पढ़ा सीमेंट के बारे में, पढ़ा सीमेंट, उसके टाइप्स को पढ़ा और पूरे लेबोरेटरी टेस्ट को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा। तो आपको सभी जो है मोल्ड्स के नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से ऑपरेटर्स हमने यूज़ किया और उसके क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करेंगे तो आपको ये बहुत मदद देगा। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए। और सिविल इंजीनियरिंग का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।